space tells a story of dreams, creativity, and passion. Namaste, dosto. Welcome to yet another episode of Sunny Side Up. As our homes light up this Diwali across the country, let's meet a woman in this episode who transforms houses into homes. Himani Gandotra, the creative mind behind Decor Rich Interiors. There couldn't be a better time to talk about design, decor, and creating beautiful spaces. Wishing you all a very happy Diwali. Let's begin today's episode of Sunny Side Up. Hello everyone, Himani Gandotra, founder Decor Rich Interiors. So I am professionally an interior designer and have a varied experience of more than a decade. So I've started my interior career journey way back in 2006. So and yes, this is my dream of running a studio and I'm following that. Himani ki kahani begins in the beautiful valley of Kashmir. Her father was a businessman there. बट 90s की इंसर्जेंसी के दौरान उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर जम्मू शिफ्ट होना पड़ा टू रीबिल्ड देयर लाइफ अगेन. Watching her father start from scratch and rise back to success became Himani's biggest source of inspiration. Youngest of the three siblings, she and her brothers learned early in life that building resilience and skill can take you anywhere in life. You can start from zero, but make it big in life. Starting from a small town like Jammu and establishing herself in a big metro city like Gurgaon, हिमानी ने साबित किया कि मेहनत और जज्बा कभी बेकार नहीं जाता. In just 3 years of her venture, Decor Rich Interiors, she has won many awards, accolades, and hearts. Truly a story of strength, determination, and creativity. चलिए मिलते हैं इस इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर से, हिमानी गंडोत्रा. तो अगर मैं बोलूं पर बचपन की यादें और कुछ एनेक्डोट वो ये हैं कि इंटीरियर्स का बीज कहीं वहाँ बचपन में ही मेरे दिमाग में भगवान ने कहो या डेस्टिनी ने कहो बो दिया था. बिकॉज व्हेन माय हाउस वाज गेटिंग बिल्ड आई यूज्ड टू सिट विद कारपेंटर्स एंड मैसन और मैं उनके साथ बैठ के बात करती थी और मुझे अच्छा लगता था उनका काम देखना. तो कहीं वो इंटरेस्ट मेरे अंदर जो था, मुझे लगता है कि वहीं से इसकी शुरुआत हुई. क्योंकि आई यूज टू से देम कि आप इसको ऐसे बनाओ, मेरा कमरा कैसे दिखेगा, मेरा बाथरूम कैसे बनेगा. तो वही बात है कि मुझे लगता है कि वो तभी मेरा इंटरेस्ट मुझे मेरी लाइफ में इनकॉर्पोरेट हो चुका था. बट येस, मैंने उसको भी एक्सप्लोर नहीं किया था. When we shifted to Jammu, whatever the reasons were, so it was little hard, of course. थोड़ा मुश्किल भी था, बचपन था. मेरे भाई भी मतलब अच्छी एज के थे, वो तो शायद ज़्यादा चीज़ें समझते थे पर मैं इतना नहीं समझ पाती थी. बट देन मेरे फादर की हमेशा एक ही अपब्रिंगिंग रही है, नेवर गिव अप इन योर लाइफ. अगर यू आर कैलिबर, अपने डेस्टिनी पे ट्रस्ट रखो, गॉड पे फेथ रखो और हम कभी भी कहीं से शुरू कर सकते हैं. तो ये एटीट्यूड जो नेवर गिविंग अप का है, आई ओड दिस टू माय फादर. बिकॉज जम्मू में जो भी हमने फिर नए स्कूलों में एडमिशन्स ली एंड नए फ्रेंड्स बनाए, नया सर्कल बना, एंड देन माय फादर वर्कड हार्ड अलॉट अगेन टू स्टार्ट हिज बिजनेस फ्रॉम ज़ीरो अगेन, दोबारा से बना के. और एक हमने दोबारा से नया घर बनाया उतना ही बड़ा. सो दिस इज़ व्हाट, मतलब कि मतलब मुझे लाइफ को अगर मैं देखूं तो मुझे शायद जो मेरे फादर ने सिखाया कि अगर आप कर सकते हो, अगर आपको अपने पे बिलीफ है तो आप कहीं भी कुछ भी अपना करके उसको आगे बढ़ा सकते हो. अब तक हमने जाना हिमानी का बचपन और उनकी अपब्रिंगिंग कितनी इंटरेस्टिंग रही है. बट लाइक मोस्ट ऑफ अस, हर टीनेज ईयर्स केम विद देयर शेयर ऑफ कंफ्यूजन. मुझे लाइफ में करना क्या है? व्हाट डू आई वांट टू डू इन लाइफ? She tried for medical and did not succeed and was obviously disheartened. But as they say, when one door closes, the other opens. It seemed as if an invisible force was guiding her towards a path where her true passion lay: creativity, design, interiors. Her father's words of building your skills, that is where one's true strength lies, motivated her to take up a course
in interior design. So let's hear how her college journey unfolded. अगर हम कॉलेज लाइफ की बात करें, तो जैसे कि जो ट्रेंड था उस टाइम में कि साइंस ही लेना है, लिया। मतलब उस टाइम हमें इतने इंटरेस्ट अपने नहीं पता होते। तो आई स्टडीड मेडिकल 11th-12th पीसीबी, एंड आई हैव गिवन नीट, जिसको आजकल बोलते हैं। उस टाइम में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था एमबीबीएस और इंजीनियरिंग का, दिया, बहुत मेहनत करी, बट शायद उसके लिए डेस्टिन्ड नहीं थी। हाँ, बहुत मेहनत करी, 2 बार अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट में 17 आवर्स की सिटिंग में पढ़ा। बट उस टाइम हम उस एज में इतने कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें नहीं पता होता कि हम उस चीज़ के लिए बने भी हैं कि नहीं बने हैं। तो वो उस टाइम में फिर लगा कि जब नहीं हुआ, थोड़ा डिसहार्टेंड हुई, बहुत टफ टाइम देखा, लोगों की भी बातें सुनी, बट देन समझ नहीं आ रहा था कि इस रास्ते जाएँ। बट फिर एक दिन अचानक से कुछ क्लिक किया कि नहीं, ठीक है, क्योंकि क्रिएटिव तो शुरू से थी, घर में ड्राइंग करना, स्केचेस करना या घर को डेकोरेट करना मुझे शुरू से ही पसंद था। मम्मी के साथ में उसमें बहुत हेल्प आउट करती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, नहीं हो पा रहा, मतलब मैं उस चीज़ को खींचूँ, लिंगर ऑन करूँ और लाइफ लॉन्ग उसमें डिस्ट्रेस में जीऊँ। इट्स बेटर कि आप कुछ और उसके देखो जो आपके कैलिबर का हो या जो आपका स्किल हो। तो फिर मेरे को लगा कि डिज़ाइनर, मतलब इंटीरियर्स का फ़ील्ड, मैंने कहीं ऐड पढ़ी और एनआईएफडी से मैंने जाके इंक्वायरी की। तो मैंने कहा कि मुझे सिंपल ग्रेजुएशन नहीं करनी है, मैं फैशन भी था, टेक्सटाइल भी था, बट मुझे इंटीरियर्स ही लगा कि नहीं, मेरे को इंटीरियर करना है। दो फ्रॉम अ स्मॉल टाउन लाइक जम्मू, इतना उस टाइम पे वहाँ ट्रेंड नहीं था, एक्सपोजर नहीं था, कम बच्चे ये कोर्स करते थे, बिकॉज पीपल हैव अ माइंडसेट कि ये कारपेंटर और मेल डोमिनेटिंग करियर ऑप्शन है, तो इसमें लड़कियां क्या ही करेंगी। बट जब मैं एनआईएफडी गई, वहाँ मुझे लाइक माइंडेड पीपल मिले, फैशन, टेक्सटाइल, इंटीरियर्स, क्रिएटिव, जिसमें मतलब आपके क्रिएटिव मतलब विद इन 6 months ऑफ सेमेस्टर आई गॉट टू नो कि दिस इज व्हाट आई wanted to do. So I really enjoyed my college life a lot. Till date I know, just want to add little more, Sunita ji, day before yesterday got a message from my director of NIFD Jammu कि हिमानी, आई एम सो हैप्पी, यू आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ। सो ये चीज़ें पढ़ के यू फील मोटिवेटेड एंड यू रियली फील यस, यू हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ। Himani had a great stint in her college, followed by an internship in Chandigarh, a great milestone in her journey. After gaining invaluable experience, it was only natural for this businessman's daughter to think of starting something of her own. Having a supportive father gave her that strength, that courage to take the next step, and that laid the foundation for what was to come next in her life. और जैसा कहते हैं, life has its own beautiful timing. Himani got married, had 2 beautiful daughters, और जिंदगी उन्हें गुड़गांव ले आई, a city full of opportunities. What I really love is Himani's theory philosophy कि लाइफ के हर फेज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए. She paused her career and this shows her clarity and balance in life. कॉलेज में मस्ती के बाद आई डिड माई इंटर्नशिप फ्रॉम चंडीगढ़, एंड देन एज यूजुअल थोड़ा सा रहता है अच्छे से, वहाँ पे मैंने बहुत देर काम किया आर्किटेक्ट्स के साथ। और उसके बाद हुआ पेरेंट्स को कि नहीं तुम घर आओ, फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे अपना ऑफिस खोलना है, क्योंकि उस टाइम जब आप इंटर्न करते हो और जब आप अपने प्रोफेशनल करियर में होते हो ना, तो उस टाइम आपको लगता है हाँ हम तो आज ही बहुत बड़े बन गए भाई, हमें तो सब आ गया, तो भाई मैं तो आज ही ऑफिस खोलूंगी। तो आई शेयर दिस माई ड्रीम ऑफ ओपनिंग एन ऑफिस विद माई फादर। तो ही सेड ठीक है आ जाओ घर। तो वापस चले गए घर। घर गए तो उन्होंने कहा ठीक है खोलो, तुम्हें शौक है। तो जैसे कि यूजुअल फैमिली में होता है कि ठीक है तुम तब तक ऑफिस चलाओ, हम लड़के लुड़के देखेंगे। क्योंकि आई ऑलवेज, मतलब मेरे फादर ने पूछा बताओ, आई हैव एल्डर ब्रदर, तो उनकी शादी पहले दोनों की हुई। मुझे कहा नहीं, मैं लास्ट में ही शादी करूंगी क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। दो अगर आप उस सिटी के हिसाब से देखो, आई मतलब सब कहते हैं बहुत लेट शादी की आपने अपनी बेटी की, बट मुझे लगा नहीं, जो मैं करना चाहती थी मेरे फादर ने हमेशा मुझे करने दिया। और फिर हमने अपना ऑफिस खोला। We 5 of our friends started our office. My first office was there in Bahu Plaza, Jammu, South Block. I still remember. My father gave me the keys. ये लो जाओ ऑफिस खोलो, अपना शौक पूरा करो। उनको लगा इनको शौक है। तो I started my office. We did many commercial projects over there.
ऐसे ऐसे जैसे जैसे बीच में मेरी फ्रेंड्स जो थी वो गर्ल्स भी थी, तो शादी होती गई, एक एक करके सब आउट होते गए। तो फिर एक टाइम आया, मैंने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट लाउंज, डीसी ऑफिस लाउंज, आई हैव ऑल द सर्टिफिकेशन फॉर दैट। आई डिड रेजिडेंसेज ऑल्सो, अच्छे से काम किया अपना, आराम से जम्मू में बहुत अच्छा काम किया। देन अ डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ हैज़ टू बी स्टार्टेड लाइक एवरीवन। तो बट लेकिन हाँ, वो जो आपके ब्लड में होता है ना, वो बिजनेस का कीड़ा, वो काम का कीड़ा, मुझे नहीं लगता आप कोई भी बिजनेसमैन का बच्चा उसको निकाल पाएगा। माय एल्डर, बोथ ऑफ माय ब्रदर्स आर, माय एल्डर ब्रदर इज lawyer and my younger one is MBA. He had worked in Pepsi, Coke, firms like this, but let's last में बिजनेस ही करना है, बिकॉज हमें लगता है वो एंटरप्रेन्योरशिप जो कहते हैं ना, वो जो स्किल्स होती हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो खून से आती ही है। सो टू मूव अहेड इन द स्टोरी, अगर मैं आगे बढ़ूँ, जैसे कि हर फादर का सपना होता है बेटी की शादी करना, तो मेरे लिए भी माय फादर वाज सर्चिंग, बट यस मेरे कुछ अपने बुलेट्स थे, बहुत क्लैरिटी थी, स्टबन बोलो या जो मर्जी बोलो, बट लेकिन माय फादर हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी। एंड देन आई मैरिड अ सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन and from the same town, Jammu only, and we got married in 2009। उस टाइम में अगर आप मेरे को स्टेज ऑफ लाइफ में पूछोगे, मेरी हमेशा एक थ्योरी रही है लाइफ की, मैं हर फेज को एंजॉय करके आगे बढ़ती हूँ, और फिर जैसे ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करने वाली बात हो, उसके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटती। ये मेरे अंदर मेरे फादर से आया है। मैंने अपनी करियर को वहाँ पे थोड़ा स्टॉप देके, आई एन्जॉयड माय मैरिड लाइफ, एंड देन वी आई मूव टू लखनऊ। 6 मंथ्स आई स्टेड इन लखनऊ, बट वहाँ भी मुझे जॉब तो मिल गई थी, बट देन ही थॉट ऑफ relocating from Lucknow to a metro city, so he got an offer in Gurgaon, and 2010 we moved to Gurgaon. So when I moved to Gurgaon, we were two, and then we planned our family। So मुझे लगा कि पहले फेज लाइफ में प्रायोरिटीज हमेशा सेट की है मैंने, क्या इम्पोर्टेंट है, कब, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड आई यूजुअली हैव टू शेयर दिस विद द यंग जनरेशन एंड विद द पीपल ऑल्सो, प्लीज सेट योर प्रायोरिटीज। उस टाइम मुझे लगा मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली, और फैमिली को आगे बढ़ाना है। इन बिटवीन दिस what I have manifested was my own house in Gurgaon। That was also in my manifestation list, I would say, and my affirmations which I used to see। कैसे डेस्टिनी ने करके जो लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, somehow वो 2019 में पूरा हुआ। आई ट्रूली बिलीव कि गॉड के जो भी प्लान्स होते हैं, आपको वो आपकी डेस्टिनी तक ज़रूर पहुंचाएंगे, बट हो सकता है रास्ता थोड़ा आपसे हटकर हो, बट लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं आप पहुंच ही जाओगे। तो मुझे इस बारे में आई हैव वेरी मच फेथ इन माय गॉड। मुझे वो चीज़ मिल ही जाती है कैसे भी करके, मैं जिस भी रास्ते से चल कर आऊँ। तो उस टाइम पे मैं अपने आप को यही समझाती हूँ कि नहीं, हो सकता है इसमें कुछ अच्छाई हो, और हर फेज में मुझे ये चीज़ सीखने को मिली कि नहीं, वो इसीलिए अच्छा ही था, और एंड में जहाँ मुझे पहुँचना है मैं वहाँ पहुँच गई। सो गुड़गांव प्रूव लकी फॉर हर, और यहीं उसने एक अपना ब्यूटीफुल सा घर बनाया। Once her personal life was settled, she started missing her work, her passion. And then one day, a heart-to-heart conversation with a close friend pushed her, motivated her to start back her career, her life in interior design. And that beautiful nudge from her friend gave birth to her venture, Decor Rich Interiors. एक दिन बैठे हुए हैं भाई, तुम यू आर नॉट हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग, बट मेरा पैशन, मेरा काम था, तो उसने क्लिक किया। दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट। आई रियली वांट टू मेंशन हर नेम, नेहा यादव। आई स्टिल रिमेंबर, शी इज़ इन मेलबोर्न राइट नाउ। उसने अपना फॉलो किया पैशन जो वो करना चाहती थी, और फिर मैंने बोला उसको, तो उसने शी सेड कि नहीं, यू कैन स्टार्ट। फिर एक होता है यू समबडी मोटिवेटेड यू एंड पुश्ड यू आउट, और उस टाइम मुझे लगा कि मैं भी तो वही हूँ जो मैं पहले करती थी, और अब मैं गिव अप क्यों कर रही हूँ। उस टाइम मुझे लगा नहीं, मैं दोबारा से करूँगी, देखते हैं क्या होगा। एंड देन द जर्नी ऑफ डेकोर रिच इंटीरियर स्टार्टेड। आई वॉज सो हैप्पी व्हेन आई डिसाइडेड दिस, बट इट वॉज हार्ड। दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए आपको सेम एनर्जीज गैदर करनी पड़ती हैं, चीज़ें अलाइन करनी पड़ती हैं। बट येस, इन दिस आई वुड रादर से कि मेरे हस्बैंड हैव सपोर्टेड मी कि तुम करो, आई एम देयर, be it a financial support or be it a emotional support। So we started
अपनी जर्नी ऑफ डेकोरेज 3 years बैक इन मार्च 2022. सो मैंने एक ब्रांड नेम सेलेक्ट किया और डिड माई ऑल फॉर्मेलिटीज ऑफ रजिस्टरिंग माई फर्म. इट्स अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न बिकॉज आई नाउ वांट टू गो ऑल द वे लीगली एंड प्रॉपर वे. सो यस, पहला प्रोजेक्ट जब मिला बहुत खुशी हुई कि यस मेरे अंदर अभी भी वो चीज़ें हैं. एंड उससे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई कि मेरा पैशन मैं फॉलो कर रही हूँ जो मैं शुरू से करना चाहती थी. और मेरी डेस्टिनी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ मैं अब पहुँच चुकी हूँ. अब आगे जो है मुझे इसी में आगे काम करना है. मेरा पैशन था मेरा काम एंड आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंटेड. तो मुझे हिमानी को इस वेंचर में अब पूरे 3 साल हो चुके हैं और मैं क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि इस मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर वो अपने आप को कैसे नेविगेट करती हैं. चलिए सुनते हैं हिमानी से उन्होंने कैसे अपने आप को इस इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश किया और वेरियस चैलेंजेस को वो कैसे फेस करती हैं. ये क्वेश्चन बहुत ही क्रूशल है. एक दो पॉडकास्ट मैंने पहले किए हैं उस पर भी ये क्वेश्चन मैंने रिप्लाई किया है. यस, इट्स 90% मेल डोमिनेटिंग बिकॉज अगर आप लेबर देखोगे, बिकॉज आर्स इज अ लेबर इंटेंसिव वर्क. सो लेबर इज ऑल मेल्स. तो उनको हैंडल करना, दिस इज आउटसाइड अनदर स्किल अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डिज़ाइनर, बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन. ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक अलग स्किल है which I have learned with passage of time. ये मेरा कस्टमर और टाइमली डिलीवरी कुछ यूएसपीज हैं जो मैं कभी सेक्रीफाइस या किसी के लिए भी वो नहीं करना चाहूँगी. उसमें एडजस्टमेंट एक क्वालिटी पे और एक टाइमलाइंस पे. तो टाइमलाइंस पे काम करने के लिए आपकी टीम को परफेक्टली पता होना चाहिए कि उनको कब कहाँ क्या करना है. तो उसके लिए कई बार हासिल होते हैं लेबर के साथ. ऊंची आवाज़ में बात भी होती है साइट पे काम खत्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है जब हमारी साइट किसी हैंडओवर स्टेज पे होती है. मतलब 15 दिन और हफ्ता पहले हैंडओवर से सफाई भी करनी है, चीज़ें भी फॉलो करनी है. रात के 10-10 बजे तक हम साइट पे रहते हैं. तो ये चैलेंजेस तो है. बट मुझे नहीं लगता आज के टाइम में ये कोई फीमेल्स के लिए अब ये चैलेंज रहा है. तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कहीं भी किसी भी फील्ड में कि वुमेन मेन से कहीं पीछे है. हमारी टॉप लीडरशिप रोल पे जब वुमन इतनी सब चीज़ें हैंडल कर सकती है तो एक साइट पे तो हैंडल कर ही सकती है. वो जवाब काफ़ी इंस्पायरिंग था कि आज के टाइम में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वुमेन लीड और मैनेज ना कर सकें. चलिए मूविंग ऑन, मैंने उनसे पूछा कि इंटीरियर्स एज अ करियर चॉइस कैसी फील्ड है. आज के यंगस्टर्स को वो क्या एडवाइस करेंगी. ऐसे कौन से ट्रेड्स हैं, ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो उनको इस फील्ड में सफल बना सकें. घर बनते रहेंगे एंड लोग काम कराते रहेंगे. तो ये करियर के लिए इसको चूज़ करना इज़ द बेस्ट फील्ड. और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो वैसे ही बहुत बड़ी है और ग्रोइंग इंडस्ट्री है और आने वाले टाइम में भी ग्रोथ ही मिलेगी. कभी नहीं ऐसा होगा. इवन कोविड में अगर आप देखोगे लोगों ने घरों में अपने काम कराया जब उनके पास टाइम था. तो ये इंडस्ट्री कभी भी, मतलब मुझे नहीं लगता वैसे डाउनफॉल में कभी जा सकती है, उतने सिवियर डाउनफॉल में वैसे. और अगर टिप्स में कहूँ यंगस्टर्स के ये यही है, प्लीज़ हार्ड वर्क तो है ही है, डेडिकेशन रखो अपने काम के लिए थोड़ी सी और लॉयल ऑनेस्टली करो जो भी करो. अगर उनमें करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कि अगर डिज़ाइनर बनना है, प्लीज़ बिल्ड योर विजुअलाइजेशन पावर. बिकॉज टू बी अ क्रिएटिव पर्सन आपकी विजुअलाइजेशन शुड बी ऑन अ हायर साइड, है ना. अब अगर आप मुझे पूछो, मैं साइट पे जाती हूँ, क्लाइंट बोलता है मुझे ये चाहिए ये चाहिए, उस साइट का प्लान और वो मेरी आंखों में पहले ही बैठ जाता है और मेरे माइंड में उसकी पिक्चर बननी शुरू हो जाती है. तो मुझे पता होता है कि यहाँ ये ऐसा बनेगा और ये बनने के बाद ऐसा दिखेगा. कई बार ये चीज़ें क्लाइंट कहते हैं अच्छा ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है, मैं उनको ये बोलती मुझे पता था ये ऐसे ही दिखेगा. सो इट कम विद एक्सपीरियंस. बट आजकल की जनरेशन क्रिएटिव ज़्यादा है, इफ़ आई वांट टू से हमसे. वी ऑल्सो हैव टू लर्न फ्रॉम देम कि वो बहुत नए आइडियाज़ इनपुट करती है. बट विजुअलाइजेशन पावर रखिए प्लीज़. अपने डिसिप्लिन मेंटेन करिए अपने करियर को लेके, है ना. एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आप डिसिप्लिन से नहीं कर पा रहे तो आपके करियर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी. प्लस डिसिप्लिन के साथ साथ एक्शन लेना भी उतना ही ज़रूरी है. सिर्फ विजुअलाइज ही नहीं करना है कि ये प्रोजेक्ट ऐसा करे होगा और बनेगा बस और बैठ जाएंगे. करना तो आप ही को पड़ेगा ना. उसके लिए एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है. काफ़ी सारी अच्छी एडवाइस मिली हमें हिमानी से.
stay focused. डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है. ड्रीम करना है लेकिन उनको अचीव करने के लिए एफर्ट्स डालने होंगे. Some very good advice, हिमानी. I'm sure they'll be very beneficial to our youngsters. अब वक्त है इस कॉन्वर्सेशन को क्लोज करने का, रैप करने का. लेकिन जाने से पहले आइए सुनते हैं हिमानी की ग्रैटिट्यूड्स उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने उसे इस जर्नी में सपोर्ट किया. Yes, first of all, thank you to Sunita ji for Sunny Side Up, and cannot close it without thanking first the universe and God, with whom's blessing I am here where I am. My father, who have always supported me, though he is no more in the world, but his blessings are always with me, and I am his part. So I say he is always with me. And my family, my in-laws, being from small town, they have supported me. मैंने जब भी जो कहा मुझे ये करना है, they have never said कि नहीं नहीं हमारे घर में ऐसा नहीं होता. And yes, of course, my partner, my life partner, my husband, my partner in crime, but every time मतलब वो सपोर्ट करते हैं. मेरे बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं. आई कैनॉट गो सेइंग विदाउट दैट. माय डॉटर्स दे से मम्मी रात दिन नहीं होती या अवेलेबल नहीं है. माय एल्डर डॉटर, शी सपोर्ट्स मी इन माय हाउस होल्ड कोर्स. कोई नहीं मम्मा आप जाओ, विल मैनेज, आवर सेल विल मैनेज. तो यस, माय फैमिली सपोर्ट्स मी अ लॉट. माय ब्रदर्स, they support me a lot. And if professionally I'll say, apart from family, my vendors support me a lot. My teachers, of course, who have taught me where I am today. My director of the institute, I really want to thank her also. And I want to thank all my friend circle also, because whenever I am sad or whenever I am feeling low, there are times when you feel low. So just a call away, I give a call to my closest friends, and they say नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रही है, अच्छा चल रहा है, और करती रहे, कुछ नहीं होता, ये आता रहता है, होता रहता है. So this is all. I want to really thank each one of my friend, family, and everyone who are close to me, who are near me, who know me, who I am. सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी लाइफ में हो और आप मुझे हर हाल से सपोर्ट करते हो. थैंक यू सो मच. Himani's journey reminds us that passion, perseverance, and belief in yourself can turn dreams into reality. From small town beginnings to establishing herself, creating her own path in a male dominated metro city, Himani proves that with focus, discipline, and heart, nothing is impossible. Himani का वर्क मंत्रा क्वालिटी और टाइमली हैंडओवर उन्हें अपने फील्ड में एक अलग जगह देता है, और इसीलिए उन्हें अपने क्लाइंट से उनका ट्रस्ट और एडमिरेशन मिलता है. ड्रीम्स डिज़ाइन डेकोरेट. इस इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद. कीप ड्रीमिंग, कीप क्रिएटिंग, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, लुक अप एट सनी साइड अप.